Yes, good morning, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, in the last lecture, we have started the revision of the unit 1. Okay. So, up to architectures. Okay. What is DBMS? Advantages, disadvantages. Okay. Architectures in the last lecture we have covered. Okay. Schema. Okay. Overall database design called the schema instance that we have covered in the last lecture. Okay, today now we will revise the topics data models. Okay, data models. So as you told, what is data models? The data models are used to show how the data is stored, connected, accessed, and updated in the database management system. Okay, design data models means we will do the designing in the data models. Data models define how the data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. Okay, we will make the design. In that design we will going to show all these things, which things, how the data is connected to each other, okay, and how they are processed and stored inside the system. Okay, database models define how logical structure of database is modeled. Okay, we will make the design before making the database, and in that design we will show all these things, which things, okay, how the data is stored, connected, accessed, and updated. Okay, for example, civil engineering. Okay, civil engineers, before making the house, they will make the design. Okay, they will make the models. Okay, in that model they show, okay, how the buildings looks. Okay, where the bedroom, hall, kitchen, carpet, they will show in that design models mein wo log dikhate hain. Okay, then after they are going to make the actual building. Okay, the same thing will be happen in the database. Directly database nahi banate. Okay, first of all we have to do the designing. Okay, yes, there are different types of data models are there. The first is hierarchical model, the second is network data model, the third one is entity relationship model, and relational models. Okay, some more models are there, but we have covered only these four types of data models: hierarchical model, network model, entity relationship model, and relational model. Okay, all are the data models in database management system. Okay, the first is hierarchical model. Okay, hierarchical. Okay, this database model organizes the data into the tree-like structure. Okay, with a single root to which all other data is linked. Okay, the hierarchical start from the root data and expands like a tree, adding a child node to the parent node. Okay, means what we are going to do, we will make the one table. That table is called the root table, and to that table multiple tables are connected. Okay, in this how the tables are connected? Tables are connected using the foreign keys. Okay, in this model a child node will only have a single parent node. Okay, a child node means a child table will only have a single table. Okay, this model efficiently describes many real world relationship like index of book, recipes. Okay, okay, for example unit 1, so in the unit index. Okay, index is an example of hierarchical model. Okay, unit 1. Okay, in the unit 1 there are possibility hai ke more than one subtopics hai. Okay, in the unit 1 possibility hai कि more than subtopics hai. You suppose unit 1 है तो 1.1, 1.2, 1.3. Okay, then 1.3 में भी 1.3.1, 1.3.2. Okay, आपका जो इंडेक्स आप रिफर करते हो जो बुक के बैक में लास्ट पेज पे दिया हुआ रहता है कि इन दैट के यू कैन फाइंड द पेज नंबर्स इजीली. ओके, तो सपोज और जो टॉपिक्स है 1.3.1, तो 1.3.1 जो है दैट इज अ चाइल्ड हो गया. किसके लिए चाइल्ड हो गया? 1.3 टॉपिक के लिए. ओके, 1.3 इज अ चाइल्ड नोड फॉर द यूनिट 1 जो 1 है उसके लिए. ओके, तो एवरी चाइल्ड हैव अ सिंगल पेरेंट, बट पेरेंट को एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि चाइल्ड हो सकता है, बट एवरी चाइल्ड हैज ओनली वन सिंगल पेरेंट. ओके, अगर ऐसे फॉर्म में वी आर गोइंग टू स्टोर डेटा देन वी कैन से वी आर फॉलोइंग द हायरार्चिकल मॉडल. ओके,
अगर हम लोग ऐसे फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आवर डेटा जो है दैट इज डेटा मॉडल जो है दैट इज अ हायरार्चिकल मॉडल. Yes, one to many relationship. Yes, Arun, you can say one to many relationship. Okay, एक parent है but उसको multiple childs है. Okay. In hierarchical model, the data is organized into tree-like structure with one to many relationship between two different types of data. For example, one department can have many courses, okay, many professors, and of course many students. एक department जो है, for example, कॉलेज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलेज से. वन कॉलेज हैव मैनी डिपार्टमेंट, okay, then one department can have many courses, many teachers, many students, okay, then one courses have many sections, theory है, lab है, okay. तो दिस टाइप ऑफ रिलेशंस अगर हम लोग टेबल को ऐसे फॉर्म में कनेक्ट करें, ओके, वी आर कनेक्टिंग टू डेटा लाइक दिस, so we can say कि our database is following the hierarchical model, okay. हायरार्चिकल मॉडल्स मतलब क्या कि जिस फॉर्म में हम लोग डेटा स्टोर करें, ओके, डेटा अगर वी आर गोइंग टू स्टोर डेटा लाइक दिस, जब ऐसे नहीं है कि वन कॉलेज इज वन डिपार्टमेंट, अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि एक कॉलेज में एक ही डिपार्टमेंट होगा, ओके, तो देन एट द टाइम वो क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप वन टू वन, ओके, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स, हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी विल डिसाइड द डेटा मॉडल्स. ऐसे नहीं कि ऐसे ही बनाना है, ओके. फॉर एग्जांपल बीएमएस में जो कोर्सेज है वो कोर्सेज को ओनली थियरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, बट इन आईटी डिपार्टमेंट ये एक सब्जेक्ट जो है, कोर्स जो है, हर एक कोर्स को प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, ओके. तो डिपेंड्स, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड्स है, ठीक है. आईटी में ऑल दी थिंग्स है डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन, जो भी कुछ बनता है, all and depends on the requirements. Okay, we will learn what is requirement, types of requirements in the next year. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे, ओके. तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, वी विल डिसाइड के विच मॉडल वी विल यूज, ओके, टू स्टोर द डेटा, ओके. हमको डेटा कैसे स्टोर करना है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे डेटा मॉडल्स. अगर हायरार्चिकल डेटा मॉडल्स है यूज करे हो तो इन द हायरार्चिकल डेटा मॉडल्स में ऐसे वन टू मैनी फॉर्म में डेटा विल बी स्टोर्ड, ओके. The next type is network model. Okay, the network database models was created to solve the shortcomings of the hierarchical database model. Okay, जो hierarchical data model है उसमें जो disadvantage है उसको overcome करने के लिए the network model was created. Okay, in this type of model, a child can be linked to multiple parents. Okay, अगर if you have the requirement के नहीं के एक child जो है उसको मल्टीपल पेरेंट्स पॉसिबल ऐसे होना चाहिए कि एक टेबल जो है उसका मल्टीपल पेरेंट्स टेबल्स होना चाहिए, ठीक है. अगर आपको ऐसे फॉर्मेट यूज करना है, टेबल बनाना है, तो यू कैन यूज द नेटवर्क मॉडल, ओके. A child can be linked to multiple parents, a feature that was not supported by the hierarchical model, because hierarchical model supports the one to many relationship, means one child can have only single parents. किसमें था, हायरार्चिकल मॉडल्स में. बट आपका रिक्वायरमेंट है नहीं, हमको ऐसे नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू अवर प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू अवर सॉफ्टवेयर, कि जो चाइल्ड नोड है उसको मल्टीपल पेरेंट्स होना चाहिए, ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट, ऐसा हमारा टेबल होगा, तो यू कैन से कि हम लोग नेटवर्क मॉडल फॉलो करेंगे, ओके. द पेरेंट नोड्स आर नोन एज ओनर्स एंड द चाइल्ड नोड्स आर कॉल्ड मेंबर्स. सी नेटवर्क मॉडल्स, ओके. तो स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट जो है दैट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट को भी बिलोंग्स करे, मतलब डिपार्टमेंट टेबल से भी कनेक्टेड है. वही स्टूडेंट लाइब्रेरी में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि लाइब्रेरी में वो बुक्स वगैरह इश्यू करे, ओके. ही और शी हैव द अथॉरिटी टू यूज द लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी अलग डिपार्टमेंट है कॉलेज में, तो उससे भी कनेक्टेड है. इवेंट करके कोई है एक टेबल, ठीक है. अगर आपको स्टूडेंट को इवेंट टेबल से कनेक्ट करना है तो यू कैन से कि वन स्टूडेंट है मल्टीपल पेरेंट टेबल, ओके. तो आपको ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर करना, आपका टेबल में ऐसे रिक्वायरमेंट है टू स्टोर दी डेटा, तो यू कैन से कि हम लोग नेटवर्क मॉडल फॉलो करें. विच मॉडल वी आर गोइंग टू यूज, नेटवर्क मॉडल्स, ओके. अगेन आई एम रिपीटिंग, every model has the specific way है how to store the data, how the data are accessed, okay, how the data are connected to each other, how the tables are connected to each other. तो उसके बेस पे यू विल डिसाइड कि आप कौन सा मॉडल यूज करें, ठीक है. हर एक के लिए सेम नहीं होगा, ओके.
Yes. The next model is entity relationship model. Okay. Entity ER model. Okay. Entity relationship model. Describe the structure of the database with the help of diagram which is known as ER diagram. ठीक है, हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे इन दिस मॉडल में उसको we will call the ER diagram. Okay. ER diagram show the relationship among the entity sets. Okay. जो tables है, tables के बीच में क्या हम लोग दिखाएंगे, relationships in this diagram. Okay. We had already done the some practicals तो नहीं but programs प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किया था. ओके. क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, उस पे से हम लोगों ने डायग्राम्स बनाए थे. ठीक है. फ्रॉम दैट पैराग्राफ फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स पे से आपको फाइंड करना था कि कौन सा टेबल है, टेबल में एट्रीब्यूट्स क्या है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है. ठीक है. देन वो टेबल्स को हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया था, ऑल दिस थिंग्स वी हैड ऑलरेडी डन. ओके. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था करने के लिए. ओके. ER diagram show the relationships among the entity sets. Entity मतलब table. Okay. Entity set is a group of similar entities, group of similar tables, and these entities can have the attributes. Okay. Entity means table. Okay. And every table को क्या होता है, attributes. What is attributes? Attributes मतलब properties. Okay. Student is an entity. Student is a table. Student table को we can say the entity. And every table, every student table has a attributes, characteristics, ID, student का name, roll number means ID, phone number, emails. Okay. In terms of DBMS, an entity is a table or attribute of table in database. Okay. So by showing the relationship among the tables and their attributes, ER diagram shows the complete logical structure of the database. Okay. For example, you can see in the figure, student is a entity, student is a table, college is a table, college is entity. You can say the entity also. Okay. Table का आप लोग entity word भी use कर सकते हो. ER diagram है तो we will use the term entity ही हम लोग use करेंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट एंटिटी है, the student entity has the three attributes. स्टूडेंट आईडी है, नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है. मतलब हम लोग क्या करेंगे, we will make the table for स्टूडेंट के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे. इन दैट टेबल हम लोग क्या बनाएंगे, आईडी, नेम एंड एड्रेस कॉलम्स वी विल मेक. ओके. एट्रीब्यूट्स का आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, कॉलम्स थ्रू डिफाइन करोगे. ओके. यस. ये क्या कर रहे हो, कौन है ये. ओके. College is another table. In that college table, we are going to store the college ID and college name. Okay. And we will connect these two tables. हम लोग ये table को connect करेंगे through the for. जैसे आपको connect करना है वैसे. तो foreign key through you can connect और join से you can retrieve the data from the multiple tables. Okay. तो अगर हमको relationship दिखाना हो तो हम लोग क्या relationship दिखाएंगे, कि student study in college. ओके. तो स्टडी में क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया. तो फॉर रिलेशनशिप के लिए हम लोग ट्रायंगल डायमंड सिंबल हम लोग यूज करेंगे. ठीक है. वी आर यूजिंग द डायमंड सिंबल. एंटिटीज के लिए रेक्टेंगल, एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल और सर्कल यू कैन से. ओके. यूज करोगे. तो दिस इज ER डायग्राम. ER डायग्राम में क्या दिखाओगे आप लोग, how the tables are connected to each other. Okay. The relationship between the tables, between the entities you will going to show in the ER diagram. Okay. The next table is relational model. Okay. The next table क्या है, relational model. Relational model represent the database as of relational. Okay. Relational मतलब table. Again entity ER diagram हमने entity मतलब table. Now in the relational model हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन मतलब क्या है, टेबल. रिलेशन मीन्स टेबल. रिलेशन मीन्स टेबल. ओके. A relation is nothing but a table of values. In a relational model, data are stored as tables. Data कैसे stored होगा, tables में. डॉक्टर कोड्स का रूल्स जो है दैट हम लोगों ने देखा कि डेटाबेस रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस हम लोग कब बोलेंगे, जब डॉक्टर कोड्स के जो 12 रूल्स जो है अगर वो फॉलो हो रहा है, देन वी कैन से दैट जो डेटाबेस दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस. टू टाइप्स का डेटाबेस मैंने आपको बताया था, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या, हमारा जो डेटा है दैट विल बी स्टोर इन द टेबल फॉर्मेट में स्टोर होगा. ओके. दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, हम लोग उसका रिवाइज करेंगे. ओके. चलो. इन द रिलेशनल मॉडल डेटा स्टोर्ड एज टेबल्स. टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा. एवरी रो इन द टेबल. ओके.
Every row in a table represents the collection of related data values, and these rows in the table denote the real world entity or relationships. Okay, tables में जो rows है, rows क्या represent करता है? Records. For example, student is a table. The student roll number डाला हमने, name, address, phone number, that is one row. एक row हो गया. तो row क्या represent करता है? Data. Okay. This is a relational database. Okay. ये जो डेटा है दैट इज द टेबल के फॉर्म में स्टोर हो रहा है. हर एक डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता. ओके, एवरी डेटाबेस इज नॉट ए रिलेशनल डेटाबेस. अगर उसको रिलेशनल डेटाबेस हमको बनाना है या तो बोलना है तो डॉक्टर कोर्स का जो 12 रूल्स है दैट वी हैव टू फॉलो. ओके, वी हैव टू फॉलो मतलब टेबल जो हमने हमारा जो डेटाबेस है वो डॉक्टर कोर्स का जो 12 रूल्स है वो फॉलो करेगा. देन वी कैन से कि जो डेटाबेस है दैट इज रिलेशनल डेटाबेस. ओके, तो उसमें फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट रूल जो है वो रूल क्या है कि डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए. डेटा इज ऑलवेज स्टोर इन द टेबल्स फॉर्मेट इन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. ओके, तो ये रिलेशनल डेटा मॉडल था. ओके, द रिलेशनल मॉडल जो डेटा है वो कैसे फॉर्म में स्टोर होगा? टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा. ओके, so this is the data models. Okay, so now next जो है that is ER diagrams. Okay, the ER model defines the conceptual view of data. Okay, it works around real world entities and associations among them. At view level, the ER model is considered a good option for designing database. Okay, generally हम लोग ER model ही बनाते हैं. Okay, next year जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे, ओके, तो आपके प्रोजेक्ट में आपको डेटाबेस के लिए डिजाइनिंग करना पड़ेगा. ओके, तो डिजाइनिंग चैप्टर करके एक है, वो डिजाइनिंग में यू हैव टू मेक द ईआर मॉडल. ओके, आपको ईआर मॉडल बनाना है. एंटिटी, नाउ यू नो व्हाट इज एंटिटी, मींस टेबल, रियल वर्ल्ड एंटिटीज. ओके, जो टेबल्स हम लोग बनाएंगे, स्टूडेंट टेबल, टीचर, कोर्स, जो भी टेबल हम लोग बनाएंगे, कस्टमर, ऑर्डर, और टेबल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटिटी. ओके, एंड हर एक एंटिटी को क्या होता है? एट्रीब्यूट्स. ओके, तो ये एग्जांपल दिया था. ठीक है, एट्रीब्यूट्स मींस प्रॉपर्टीज. यू कैन से प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टूडेंट एंटिटी में है नेम, क्लास, एज, तो ऑल आर द एट्रीब्यूट्स. ठीक है. यस, types of attributes, it is important. There are different types of attributes. Okay, we have already covered. The first is simple attributes. What is the simple attributes? The simple attributes are atomic values, okay, which cannot be divided further. For example, student phone number is atomic. Okay, we cannot divide the student phone number. Okay, student का जो phone number, that is atomic value. What is simple attributes? जो attributes atomic values है उसको हम लोग divide नहीं कर सकते. That is a simple attributes. Another example कोई हो, बताओ मुझे. The one example is given here, that is a phone number is atomic value of 10 digits. We cannot change the phone number. Sorry, we cannot divide the phone number. हम लोग phone number को divide नहीं कर सकते. That is a simple attribute हो गया. Now one more example I want from your side. Give the another example for simple attribute के लिए. Another example बताओ मुझे. Yes, चलो. Another, yes, one answer is there. ID, yes, Arun, yes, very good. ID, roll number, ठीक है, उसको हम लोग divide नहीं कर सकते. Okay, one more answer is there. आधार नंबर, yes, okay, जिसको हम लोग divide नहीं कर सकते. जो attributes को हम लोग divide नहीं कर सकते, okay, that called the simple attribute. Very good. Okay, Arun, Irshad, good. Yes, so that type of attribute called the simple attribute. The second type is composite attribute. उसका opposite, जो attributes को हम लोग divide कर सकते हैं. Okay, जो attributes को हम लोग divide कर सकते हैं, that is called the composite attribute. For example, name. अगर आपको name, student का name आपको चाहिए तो आप input करवा सकते हो कि enter the first name, enter middle name, enter last name. Okay, तो हमने क्या किया? attribute को divide कर दिया. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, आप उसको और मिडिल नेम करके भी और एक डिवाइड कर सकते हो. So that type of attributes called the composite attributes. Composite attributes are made of the more than one simple attributes. More than one simple attributes. फर्स्ट नेम को अगर आप आगे डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो फर्स्ट नेम इज अ सिंपल एट्रीब्यूट हो गया. लास्ट नेम को डिवाइड कर सकते हो और आगे फर्दर, नो, दैट इज अ लास्ट नेम.
तो डेफिनेशन क्या लिखा है, द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सिंपल एट्रीब्यूट्स। ओके, मतलब अब जो एट्रीब्यूट्स को यू कैन डिवाइड फर्दर, ओके, सब एट्रीब्यूट्स भी डिवाइड कर सकते हो, वो एट्रीब्यूट्स को आप क्या बोलोगे, यू कैन से दैट एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट रोल नंबर, उसका नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू शो इन द टेबल कॉल द एट्रीब्यूट्स। ओके, उसको एट्रीब्यूट्स को भी टाइप्स बताया हुआ है। The next is single value attributes. Okay, single value attributes contains the single value. ओके, जो एट्रीब्यूट्स को आप लोग एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वी कैन नॉट असाइन दी मल्टीपल वैल्यूज। एट्रीब्यूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सोशल सिक्योरिटी नंबर, एवरी पर्सन को एक ही सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। देन अनदर एग्जांपल यू कैन गिव दी आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरी पर्सन के पास जो है एक ही मतलब आधार कार्ड होता है। हम लोग कभी हमारे पास मल्टीपल आधार कार्ड्स हैं नहीं। ओके, एवरी पर्सन मस्ट हैव ओनली वन आधार कार्ड नंबर, वन पैन कार्ड नंबर। अगर आपका आधार कार्ड नंबर जो है, जो अगर वो अगर गुम हो गया या मिस हो गया तो आप से निकालोगे तो आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, सिंगल वैल्यू आपका रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर चेंज होता है बट रोल नंबर एक ही आपको देते हैं। एक स्टूडेंट को मल्टीपल रोल नंबर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, यस, डेट ऑफ बर्थ यू कैन से, ओके, सबका एक ही डेट ऑफ बर्थ होता है। ओके, वो भी डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता। तो जो एट्रीब्यूट्स को सिंगल वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं या कर सकते हैं, that type of attribute called the single value attributes. Okay, multi value attributes उसका opposite, multi value attributes may contain more than one values. Okay, for example email addresses, okay, phone numbers। तो ये पॉसिबल है कि अगर आप लोगों ने बोला एंटर द फोन नंबर, तो पर्सन के पास पॉसिबल है कि एक से ज्यादा फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वी कैन क्रिएट द मल्टीपल ईमेल आईडी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, अगर हमारा एक ईमेल आईडी हम लोग यूज करें, उसका ड्राइव फुल हो गया तो हमको चेंज करना, तो वी कैन चेंज ईमेल एड्रेस है, तो वी कैन मेक अनदर ईमेल एड्रेस। तो पॉसिबल है कि हमारे पास दो ईमेल आईडी, तीन ईमेल आईडी पॉसिबल है। व्हेन यू आर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो उसमें देखना कि अल्टरनेट ईमेल आईडी या तो अल्टरनेट फोन नंबर के लिए हम लोग को बोलता है। ओके, फॉर एंटरिंग के लिए। तो दैट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। Derived attributes मतलब क्या? The derived attributes are the attributes that do not exist in the physical database, but their values are derived from another attributes, okay, present in the database. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Derived attributes. Okay, for example, average salary in department should not be saved directly in the database, but instead we can be derived. Okay, अगर आपको एवरेज सैलरी काउंट करना है तो आप यूजर को नहीं बोलोगे एंटर योर एवरेज सैलरी, ओके, या तो फिर एंटर दी योर एवरेज मार्क्स, ऐसे नहीं बोलोगे। आप क्या करोगे, मार्क्स जो कॉलम ऑलरेडी टेबल में आपने डाला हुआ है, वो मार्क्स में से बेस्ड ऑन दैट कॉलम यू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स, या तो सैलरी जो है यू विल कैलकुलेट द एवरेज सैलरी, तो क्या आप उसको कैलकुलेट कर लोगे। आप उसके लिए यूजर को नहीं बोलोगे कि आप सैलरी भी डालो, एवरेज सैलरी भी डालो, ऐसे नहीं करोगे। व्हाट यू विल डू, एंटर योर सैलरी, देन अगर आपको उसको एवरेज चाहिए तो आप उसको फॉर्मूला लगा के, ओके, आप फॉर्मूला लगा के यू कैन काउंट द एवरेज सैलरी। हमने देखा फंक्शंस है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आर देयर इन द डीबीएमएस में भी, टेबल में भी वी कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑन द टेबल। ओके, एग्रीगेट फंक्शंस देखा हम लोगों ने, जिसके थ्रू वी कैन काउंट द डिफरेंट फंक्शन, मतलब नंबर ऑफ रोज काउंट करना है या तो एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन परफॉर्म, ठीक है। तो जो फंक्शंस है थ्रू दैट यू कैन काउंट द जो भी आपको, या तो यू कैन डू द प्रोसेसिंग ऑन द डेटा। तो व्हाट इज द डिराइव एट्रीब्यूट, के जो एट्रीब्यूट फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जो जिसके लिए कॉलम्स हमने नहीं बनाया है, जो एट्रीब्यूट्स के लिए वी कैन नॉट मेक द कॉलम्स बट वी कैन कैलकुलेट उसका वैल्यू, या तो वी कैन डिराइव, यू कैन से कि वैल्यू डिराइव कर सकते फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट पे से, तो दैट इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अनदर एग्जांपल दिया हम लोगों ने, एज। ओके, आप यूजर से क्या एंटर करवाते हो, डेट ऑफ बर्थ, एज नहीं एंटर करवाते। ओके, तो अगर आपको एज चाहिए, इफ यू वांट टू एज, ओके, तो आप क्या करोगे, जो डेट ऑफ बर्थ कॉलम है
उस पे से यू विल कैलकुलेट द एज। तो दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स के जो फिजिकली अवेलेबल्स नहीं है डेटाबेस में, बट यू कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दैट, जो भी एट्रीब्यूट्स का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो बेस्ड ऑन द अनदर एट्रीब्यूट स्पेस फ्रॉम द अनदर एट्रीब्यूट स्पेस, so that type of attribute called the derived attribute. Okay, all are the attributes देखा हम लोगों ने। relationships, okay, association among the entities is called the relationships. Okay, two tables के बीच में आप क्या relationship दिखा रहे हो? Employees work at a department, तो employees है one table, department is another table, तो दो टेबल के बीच में आपने क्या रिलेशनशिप दिखाया कि एम्प्लॉय वर्क्स, एम्प्लॉय काम कर रहा है डिपार्टमेंट में, वर्किंग इज अ रिलेशनशिप। स्टूडेंट एनरोल इन अ कोर्स, तो स्टूडेंट इज अ वन टेबल, कोर्स इज अनदर टेबल, तो दो टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप क्या दिखा रहे हो? तो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है कोर्स के लिए, तो स्टूडेंट एनरोल कर रहा है कोर्स के लिए, तो एनरोल इज अ रिलेशनशिप। ओके, तो हम लोग टू टेबल्स के बीच में क्या दिखाएंगे? रिलेशनशिप्स दिखाएंगे। ओके, एंटिटीज के लिए आपको सिंबल यूज करना है। ओके, हमने ये ऑलरेडी कवर किया है कि हाउ टू मेक दी ईआर डायग्राम। ओके, तो एंटिटीज के लिए रेक्टेंगल आप लोग यूज करोगे, एंड इन दैट रेक्टेंगल यू हैव टू राइट द एंटिटी नेम, टेबल का नेम आपको लिखना है। एंटिटी मतलब टेबल, अगर रेक्टेंगल है तो आपको समझ में आना चाहिए दिस इज अ टेबल, स्टूडेंट इज अ टेबल, टीचर इज अ टेबल, प्रोजेक्ट इज अ टेबल, ऑल आर दी टेबल्स, बिकॉज उसको हमने किस में लिखा है? रेक्टेंगल में लिखा है। ओके, एट्रीब्यूट्स। ओके, तो एट्रीब्यूट्स को आप कैसे एलिप्स में शो करवाओगे? ओके, every attributes directly connected to entity. So from this figure what we are understanding is student is an entity, and in that student table there are three attributes: roll number, name and birth date. Okay, and what student table को connected है, तो we can say कि all are the attributes of the student table. Okay, ये जो attributes है वो किसके हैं? student table के। Okay, तो student is an entity and all are the attributes. Attributes के लिए you are use the ellipse symbol. Okay, if any attributes are composite attributes, okay, हमने देखा ऊपर types of attributes, अगर composite attributes है तो they are further divided in a tree like structure. So from this figure we can understanding that कि name is a composite attribute. Why? Because name को अगर further divide किया है first name and last name. Okay, so types of attributes में composite attributes if you are going to show, so you have to शो लाइक दिस, ऐसे आपको करना है। ओके, तो नेम क्या हो गया आपका? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ओके, कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है तो अगर आपको उसको शो करना है ये डायग्राम में, तो आप क्या यूज करोगे? डबल एलिप्स। ओके, तो इन दिस फिगर यू कैन से कि फोन नंबर इज अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। अगर आपने मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, sorry, if you are making any attributes to multi value attributes, तो आप उसको क्या दिखाना है? उसको डबल एलिप्स में दिखाना है। बिफोर मेकिंग द डेटाबेस यू विल मेक द डिजाइन। ईआर डायग्राम आप पहले बनाओगे। ये ईआर डायग्राम में से जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जो भी डेटाबेस बनाने वाला है, दैट पर्सन क्या करेगा? ये डिजाइन को रिफर करेगा, एंड बेस्ड ऑन दिस डिजाइन वो क्या बनाएगा? देन डेटाबेस रेडी करेगा। तो उसके पास पहले क्या होता है? डिजाइनिंग होता है। बेस्ड ऑन दैट डिजाइनिंग, वो डिजाइनिंग देख के समझ में आएगा ये इसके मुझे एक स्टूडेंट टेबल बनाना है, वो टेबल में ऐसे एट्रीब्यूट्स होना चाहिए जो नेम्स जो है दैट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है। ओके, स्टूडेंट को एक फोन नंबर करके एट्रीब्यूट है, वो फोन नंबर एट्रीब्यूट है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। ओके, डायरेक्टली कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करता। ओके, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ओके डिजाइनिंग बनाया जाता है। बेस्ड ऑन दैट डिजाइनिंग दैट वो लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो डेटाबेस में भी डायरेक्टली हम लोग टेबल्स, अभी तो हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग स्टेज पे, सो वी आर डायरेक्टली मेकिंग द टेबल्स। ओके, बट इंडस्ट्री में या तो जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है, इन दैट प्लेसेस पहले तो क्या बनाया जाता है? हर एक चीज का डिजाइनिंग होता है। डेटाबेस करने से पहले भी डिजाइनिंग बनाता है। ओके, इन दी लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप लोग डायरेक्टली डेटाबेस बनाने नहीं बैठोगे। व्हाट यू विल डू फर्स्ट, आप ऑन पेपर पहले डिसाइड करोगे यस के मेरे जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में ये डेटाबेस होगा, ठीक है, ये डेटाबेस में हम लोग इतना टेबल्स क्रिएट करेंगे, ये पेज का डेटा ये टेबल में स्टोर होगा। तो यू विल डू द फर्स्ट डिजाइनिंग ऑन द पेज। ओके, आप हार्ड कॉपी बनाओगे पहले डिजाइनिंग का, देन उसको
डिजाइनिंग के लिए, देन सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, सॉफ्टवेयर है, स्टार यूएमएल वगैरह करके हम लोग पढ़ेंगे। बट आपको एक चीज याद रखना है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मॉडल्स। आपको लग रहा है कि ये मॉडल्स की क्या जरूरत है, बट एक्चुअल डेटाबेस बनाने से पहले जो डेवलपर्स हैं वो पहले क्या बनाते हैं, डिजाइनिंग बनाते हैं ऑन पेपर। ओके, देन ये सारी डिजाइनिंग पे से देन वो लोग एक्चुअल डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर में डेटाबेस बनाते हैं। तो कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले डिजाइनिंग इज मस्ट। ओके, derived attributes are depicts by the dash ellipse। ओके, अगर कोई एट्रीब्यूट्स derived एट्रीब्यूट्स है आपके टेबल में, ओके, अगर आपके टेबल में कोई एट्रीब्यूट derived एट्रीब्यूट्स है तो आप उसको डिजाइनिंग में कैसे शो करोगे, डैश एलिप्स से। एज इज अ derived एट्रीब्यूट, मतलब वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है बट उसको हम लोग यूज कर रहे हैं एट्रीब्यूट को, तो उसका वैल्यू हम लोग कहाँ से डिराइव करेंगे, बर्थ डेट पे से। कहाँ से डिराइव करेंगे, बर्थ डेट पे से। यूजर विल नॉट एंटर द वैल्यू फॉर एज, यूजर एज के लिए वैल्यू एंटर नहीं करेगा। ओके, यूजर विल ओनली एंटर द बर्थ डेट, बट हमको वो चाहिए, ठीक है, हमको वो काउंट करना है या तो हमको वो डेटा रिटर्न करवाना है एज, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिट्राइव करेंगे फ्रॉम द बर्थ डेट कॉलम पे से। वाई, बिकॉज एज तो है वो तो हम लोग एंटर नहीं करवा रहे, वेयर यूजर से हम लोग यूजर से क्या एंटर करवा रहे हैं, बर्थ डेट। तो फ्रॉम बर्थ डेट वी विल कैलकुलेट द एज। तो अगर आपको कोई एट्रीब्यूट डिराइव दिखाना है तो यू हैव टू ड्रॉ द डैश इलिप्स फॉर डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। ओके, रिलेशनशिप्स के लिए वी विल यूज द डायमंड शेप बॉक्स। ओके, तो वन टू वन रिलेशनशिप्स, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स, ओके, मैनी टू वन रिलेशनशिप्स। ओके, उसके लिए आप एन टू वन, वन मैनी जो एंटिटीज है दैट आर कनेक्टेड टू वन एंटिटीज। ओके, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। ओके, देन द नेक्स्ट इज दैट, ये क्या हो गया, रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वन टू वन, वन टू मैनी। ओके, मैनी टू वन, वन डिपार्टमेंट हैज मैनी मैनी कोर्सेज। ओके, तो आप वन टू मैनी रिलेशनशिप दिखाओगे, बट ऐसे दिखाना कि नहीं वन डिपार्टमेंट हैज ओनली वन कोर्स, तो वन टू वन रिलेशनशिप आ जाएगा। ओके, अगेन वही है कि आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू विल शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। हर एक के लिए सेम ही होगा वैसे नहीं है, आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, what you are going to provide the features। Okay, based on that you will decide the relationship between the tables। Okay, the next topic is that is a participation constraint। Two types of participation of the entities, total participations and partial participations। Okay, each entity is involved in the relationship total। Okay, जितने भी एंटिटीज हमारे टेबल्स में, हर एक एंटिटीज के बीच में हम लोग रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज अ टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ द एंटिटीज। अगर हर हमने रिलेशनशिप्स में एवरी एंटिटीज एवरी टेबल इन्वॉल्व नहीं किया है हमारे डेटाबेस का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ईआर डायग्राम। ओके, प्रैक्टिस किया है हम लोगों ने, ऑलरेडी एग्जांपल भी दिया हुआ है करने के लिए। तो एंड this is the ER diagram। The next is generalization and aggregations, sorry, generalization and specialization। Okay, so what is generalization, what is specialization? तो generalization मतलब क्या, what is the meaning of generalization, कौन बताएगा मुझे शॉर्ट में, किसको याद है, what is generalization? You can see the figure now, बताओ मुझे what is generalization। if multiple entities, okay, if we club the multiple entities into one entities group हम लोग बना रहे हैं, multiple tables clubbing into the one table surface, yes, that is a generalizations। okay, based on their common characteristics के base पे हम लोग multiple tables को एक common table में club कर देंगे, ठीक है, उसका एक common properties पे, so that is called the generalization। okay, pigeon, sparrow, dove, all are the birds। तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों बर्ड्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों टेबल को क्लब करेंगे, मर्ज करेंगे एक ही टेबल में, बर्ड्स टेबल में। नाउ इन दिस बर्ड्स टेबल we will store these details, that is a generalization। and what is the specialization? specialization opposite है कि हम लोग उसको इजी रिलेशनशिप दिखाएंगे, सब डिवाइड करेंगे, एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में सब टेबल्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज अ स्पेशलाइजेशन। दैट इज अ स्पेशलाइजेशन। पर्सन इज अ स्टूडेंट एंड पर्सन इज अ टीचर, तो दैट इज अ क्या हो गया आपका स्पेशलाइजेशन हो गया, सब डिवाइड करना। ओके,
हो, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। ओके, जनरलाइजेशन मतलब मल्टीपल टेबल्स को एक में क्लब करना, एंड स्पेशलाइजेशन मतलब एक टेबल को आगे सब डिवाइड करना, दैट इज अ स्पेशलाइजेशन।